Good morning, student. Today we will study about Kirchhoff's law in a circuit. Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff's law. In 1842, Kirchhoff's state two law. In 1842, Kirchhoff's state two law. First law, first law. First law is also called junction rule. First law is also called junction rule. Okay. According to first law of Kirchhoff's first law, in an electric circuit, in an electric circuit, the algebraic sum of currents in an electric circuit, the algebraic sum of the current meeting at any junction in the circuit is zero. That is, summation of I is equal to 0. This means किसी जंक्शन पर टोटल करंट का एल्जेब्राइक सम 0 होगा. ठीक. अदरवाइज वी कैन से at any junction total incoming current is equal to the total outgoing current. Okay, so suppose that this is the any junction is a point O, and incoming current is I1, I2,
and I3, and outgoing current I4 and I5. At a junction O, total incoming current is I1, I2 and I3, and total outgoing current from this junction is I4 and I5. So, according to junction rule of Kirchhoff's, total algebraic sum of current at the junction is 0. That is, summation of I is equal to 0 at the junction. So, अगर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग करंट नेगेटिव हो जाएगा. I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकमिंग करंट I1, I2, I3 तीनों को पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे. I4 माइनस I5 इक्वल टू 0. और आप टोटल इनकमिंग करंट को नेगेटिव भी ले सकते हैं और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव भी ले सकते हैं. तो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0. इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5. इससे भी यही चीज मिलेगा, इनसे भी यही मिलेगा. यानी इट इज क्लियर दैट एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट is equal to the total outgoing current from that junction. It is clear that total incoming current at any junction is equal to total outgoing current from that junction. ओके, देखिए टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट. दिस इज Kirchhoff's first law. It is also called junction rule. Okay, next है Kirchhoff's second law.
Kirchhoff's first law is simply a statement of the conservation of charge, यानी जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है. दैट मीन्स इसके चार्ज के कंजर्वेशन के स्टेटमेंट के ही तरह है. ठीक, सेकंड देख लीजिए. Second law. Second law is also called loop rule. Loop rule. Okay. According to Kirchhoff's second law, in any closed loop of a circuit, the algebraic sum of products, the algebraic sum of product of current and the resistance current and resistance in each part of the loop each part of the loop is equal to the algebraic sum of the EMFs EMFs in the loop when we traverse in the direction of current, the product of the current and the corresponding resistance is taken as positive, and the EMF is taken as positive when we transverse from the negative to the positive electrode of the cell through the electrolyte. Kirchhoff's second law is simply a statement of the conservation of energy. एग्जाम्पल में देखिए सर्किट का, इसको कैसे स्टेट करेंगे.
ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस। फर्स्ट सेल जिसका EMF E1 है, इससे लीड करंट I1। सेकेंड सेल जिसका EMF E2 है, EMF की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। सेल 2 लीव्स करंट I2। So at this point of the junction, total incoming current I1 and I2. So outgoing current is equal to total incoming current, that is I1 plus I2 leave from this point, and resistance R3 corresponding the current I1 and I2. I2 corresponding current resistance R2 and I1 corresponding current to resistance R1. Okay. In first loop and this is second loop. इन फर्स्ट लूप देखिए, अब करंट की डायरेक्शन से चलिए, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, सेल भी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस डायरेक्शन में आइए, ये ऐसे हो जाएंगे। इन फर्स्ट लूप फॉर द लूप 1, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन में आइए, I1 करंट किस रेजिस्टेंस से जो कि करस्पॉन्डिंग है R1 से, तो प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस R1। फिर यहाँ पर आइए, करंट I2 फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R2। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम ऐसे लूप को लेकर चल रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा -I2 इंटू रेजिस्टेंस R2। I1 को हमने लिया पॉजिटिव, ठीक, I1 की डायरेक्शन को, तो हम ऐसे चल रहे हैं, देखिए इसे इस लूप को कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे, तो I2 के अपोजिट, सो I2 इज नेगेटिव इंटू R2 इक्वल टू, इस दोनों सर्किट में आप सेल E1 नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, E1 माइनस, यहाँ पर देखिए अपोजिट चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि EMF की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो डायरेक्शन इधर है, हम चल रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव E2। ओके, देख लीजिए एक बार, करंट I1 की डायरेक्शन हम चल रहे हैं, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इस तरह से हमारी डायरेक्शन बन रही है लूप की, ऐसे I1 इंटू R1, I2 के अपोजिट चल रहे हैं, तो -I2 इंटू रेजिस्टेंस R2 is equal to the algebraic sum of EMFs in the loop। algebraic sum में सेल E1 का EMF है, E1 है जो हमारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ही डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव लेंगे साइन इनकी, यहाँ पर देखिए अपोजिट हो जाता है, EMF की डायरेक्शन के अपोजिट हम चल रहे हैं, यानी हमारा EMF की डायरेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की होगी, हम चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसको नेगेटिव रख दिया E2 को, ठीक। अब देखिए लूप 2 को देख लीजिए, फॉर द लूप 2,
अब इस लूप में आइए, ये आपका हो जाता है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, आपका हो जाएगा I1 प्लस I2, I2 किस रेजिस्टेंस में, R3 में। अब देखिए हम I2 के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव भी रहेगा I2। देखिए ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, I2 की डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, यह R2 में जा रहा है। R2 इक्वल टू, इसमें देखिए EMF E2 केवल एक्टेड है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो E2 हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक्स। Kirchhoff's second law is also called Kirchhoff's voltage law. It is also called Kirchhoff's voltage law. Okay, thanks.